Welcome back students to this trigonometric class of class 10th mathematics. Today we are going to look at a very interesting example number 15, and we will do question number 5, fifth part, which is similar to this example. So, two things which are similar, we will do them first and then we will do more questions. So, this example number 15, let's look at this. It says prove that sin theta minus cos theta plus 1 whole divided by sin theta plus cos theta minus 1 is equal to 1 upon secant theta minus tan theta. Using secant square theta is equal to 1 plus tan square theta. So, those blue part is the question. You will get this question comes in the exam for 7 marks. So, 7 is the most highest mark question. So, 7 marks का एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसको बड़े अच्छे से करने की ज़रूरत है. Now, since we want to use this identity secant square theta is equal to 1 plus tan square theta, so let us convert the left hand side of equation number 1 in terms of secant and tan theta. We like to convert this into secant theta and tan theta. Let us see how we are going to do this. So, let us start from the left hand side. Left hand side is sin theta minus cos theta plus 1 whole divided by sin theta plus cos theta minus 1. Now, what do? I divide the numerator and the denominator of the left hand side both by cos theta. ऊपर को पूरे को cos थीटा से डिवाइड कर दो, नीचे वाले पूरे को cos थीटा से डिवाइड कर दो, तो बच्चों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो ऊपर किया वही नीचे किया. तो लेफ्ट हैंड साइड अब क्या बन जाती है, sin थीटा बाय cos थीटा माइनस cos थीटा बाय cos थीटा प्लस 1 बाय cos थीटा. डिनोमिनेटर sin थीटा बाय, हर एक टर्म को मैंने cos थीटा से डिवाइड किया है, cos थीटा बाय cos थीटा माइनस 1 बाय cos थीटा. नाउ वी ऑल नो sin थीटा बाय cos थीटा इज tan थीटा, right? And cos theta by cos theta is 1, so minus 1 plus 1 by cos theta क्या होता है, that is secant theta. Similarly, denominator becomes tan theta plus 1 minus secant theta. Alright, this is my first step is over. Cos theta से divide करके मेरा tan और secant में आ गए, first step is over. Now step number 2. We are going to multiply and divide the numerator and denominator by tan theta minus secant theta. So, ऊपर को भी हम tan theta minus secant theta से multiply करते हैं, नीचे को भी multiply करते हैं, सेम से multiply करो तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है. तो मैंने रेड में दिखाया, हमने tan theta minus secant theta से numerator को multiply करना है और उसी से हमने denominator को भी multiply करना है. अब देखो, मैं अगर इसको multiply करूँ तो ये है क्या, a प्लस बी, ये है a माइनस बी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना. tan थीटा प्लस secant थीटा, ये है tan थीटा माइनस secant थीटा, दिस विल बी tan स्क्वायर थीटा माइनस secant स्क्वायर थीटा, राइट. सो right, okay, so what will happen is that, give me a second please. Okay, coming back. So, we have tan square theta minus secant square theta minus, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा tan theta minus secant theta whole divided by, this is जैसा ये है वैसा ये है. So, this will be tan theta minus secant theta plus 1. इसको हम नीचे को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं. ओके, ये जस्ट मतलब ओपन नहीं किया हमने, tan theta minus secant theta ही रहने दिया. यहाँ तक आ गई. दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3. स्टेप नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया. हमने इस रेड वाले के साथ मल्टीप्लाई किया और रेड वाले के साथ डिवाइड किया. नाउ स्टेप नंबर 3, अब क्या करेंगे, वी नो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, secant स्क्वायर थीटा. देयरफॉर अगर मैं 1 को इधर ले जाऊं, सी इफ आई टेक 1 हियर, इट विल बिकम माइनस 1 एंड आई एम टेकिंग secant स्क्वायर थीटा हियर, सो आई विल गेट tan स्क्वायर थीटा माइनस secant स्क्वायर थीटा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1. वेरी गुड. इस इक्वेशन नंबर 4 को मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ.
So tan square theta minus secant square theta की जगह I'll write -1. So I'll get -1 minus of ये blue tan theta minus secant theta whole divided by. अब मैंने क्या किया, ये वाला ब्रैकेट को देखो, इसमें tan थीटा पहले है, मैं secant थीटा पहले ले आया, तो पूरे को मैंने अगर माइनस एक बाहर निकाल लिया, बेसिकली एक माइनस बाहर निकाल लिया। क्यों निकाला? क्योंकि ऊपर में सब टर्म्स माइनस हैं, तो ये माइनस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं। तो ये क्या हुआ, जो यहाँ पर प्लस थे वो माइनस हो गए, और जो माइनस था सेकेंड वो अब प्लस हो गया। माइनस कॉमन निकाला हमने सिर्फ फर्स्ट टर्म से। अब क्या होगा, अब बच्चों ये ऊपर वाले दोनों माइनस और नीचे वाला एक रेड वाला माइनस, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास बचेगा सीकेंट थीटा, ये सब प्लस हो गया ना। माइनस कॉमन ले लोगे, ऊपर में भी माइनस कॉमन लोगे, तो क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा, ये आएगा। और राइट, और हमने एक बार और माइनस किया, 1 सेकेंड, तो हमने 2 बार माइनस किया है। tan थीटा का अब क्या बनाया हमने, तो ऊपर क्या आएगा, अभी अगर करता तो क्या आता, ये बच्चों आता मेरा 1 प्लस tan माइनस सेकेंड आता। तो मैंने ऊपर को भी एक बार फिर से माइनस किया। राइट मी शो 1 सेकेंड, तो मैंने ऊपर वाले को अगर मैं ऐसे करता माइनस माइनस, ये वाले माइनस काटता, तो मेरे पास ऊपर आना चाहिए था 1 प्लस tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा, ये आना चाहिए था ना, ये आना चाहिए था कहाँ पे, इधर में आना चाहिए था, अगर माइनस माइनस ये वाले काटता तो। लेकिन यहाँ तो हमने लिखा हुआ है सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा -1, तो इसका मतलब फिर से माइनस किया हुआ है इसको। और ऐसा क्यों किया, यहाँ देखो डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है tan थीटा माइनस थीटा सेकेंड थीटा। अब क्या लिखा है हमने यहाँ पे, सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा, तो यहाँ का भी एक बार 2 माइनस बाहर निकाले हमने। इसको करने के बाद एक माइनस, और ये माइनस माइनस के साथ जाएगा। आप अपने हाथ से करके देखिए प्लीज़ अपनी कॉपी पे, यू विल फाइंड इट वेरी इजी टू डू, राइट, करके देखिए। तो ये आएगा हमारे पास। तो फ़ायदा क्या हुआ इससे फ़ायदा क्यों, ऐसा किया क्यों हमने, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमारे पास सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा -1 है। ऊपर भी अगर हमारे पास वही आ जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा, और नीचे बचेगा सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा, that is equal to 1 upon secant theta minus tan theta, right? So hence proved. Please do this in your copy, ऐसे सिर्फ सुने नहीं, write it up in your copy, and then you will find this will be quite good. In fact, this is the best question of entire trigonometry. तो इसलिए थोड़ा सा अगर आपको 2 बार भी करना पड़े इसको समझने के लिए, तो भी अच्छी बात है ये, राइट। आइए इसके जैसा एक और क्वेश्चन है, और वो है क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट। इट सेज cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट a प्लस cot a। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू यूज कोसिकेंट स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। नाउ सिंस वी वांट टू यूज द आइडेंटिटी cos square a is equal to 1 plus cot square a. Therefore, what I am going to do is I am going to convert the left hand side of equation number 1 in terms of cosecant and cot. Cot बनाना है मेरे को, तो cos by sin। अब की बार हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने दोनों को cos से डिवाइड किया था, अब हमको साइन से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों ये किया, देखो हर एक टर्म को मैंने साइन से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया हमारे पास cos a अपॉन साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए। सिमिलरली डिनोमिनेटर को देखो, cos a बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। सो cos a बाय साइन ए क्या होता है, वो तो cot a होता है। ये साइन ए बाय साइन ए -1, एंड 1 बाय साइन ए क्या होता है, वो कोसिकेंट a होता है। ये है वापस cot a प्लस 1 माइनस कोसिकेंट a। तो मेरे पास ये आ गई कोई से इक्वेशन नंबर P,
राइट। अब हमने पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे किया था, हमने मल्टीप्लाई किया था इसको किसी टर्म के साथ और डिवाइड भी उसी टर्म से किया था, स्टेप नंबर 2 मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। अब की बार हम किससे कर रहे हैं, कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए से, कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए से। न्यूमरेटर को हम नहीं हिलाएंगे अब की बार, राइट। अब की बार हम डिनोमिनेटर के साथ खेलेंगे। यह है समथिंग लाइक p माइनस क्यू, दिस इज लाइक p प्लस क्यू। सो p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू होता है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस 1 के साथ किया तो ये पूरा का पूरा ब्लैक 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए। शाबाश। तो यहाँ पे हमारा स्टेप 2 ख़त्म हो गया। नाउ एक नेक्स्ट स्टेप लगा रहे हैं, स्टेप नंबर 3। आई एम गोइंग टू यूज इक्वेशन नंबर 2 ये कोसेकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आई एम गोइंग टू यूज दिस इन इक्वेशन नंबर 3। तो अब उससे पहले एक और बात देखो, कॉट स्क्वायर ए इसको मैं उधर ले जाऊं, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ए, ये 1 इधर आ जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू -1। इसलिए मैंने इसके पूरे की जगह क्या लिख दिया, आई हैव रिटन दिस -1 हियर, प्लस ये आ गया। अब देखो न्यूमरेटर में भी कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए -1 है, डिनोमिनेटर में भी वही चीज़ है, दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं। अब की बार हमारा आंसर आ गया कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए which is our right hand side, hence proved, right? If you want to see the whole picture once again, the whole thing again together, that is it. Okay, now please solve this, stop, pause here, solve and then only go ahead. Let's move ahead. 2 questions we have done so far. Question number 1 we have already done, 2 we have already done, 3 also we have done, 4 also we have done. आइडेंटिटीज़ प्रूव कर रहे थे, फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, सेकंड कर चुके हैं, थर्ड भी कर चुके हैं, फोर्थ भी कर चुके हैं, फिफ्थ अभी अभी कर लिया हमने, राइट। और हमने आपके साथ सिक्स्थ भी कर लिया है ना, आई थिंक सो कर लिया है सिक्स टेक अ स्क्रीनशॉट, हाँ किया है कल ही किया था, राइट। नाउ लेट अस कम टू 7th फर्स्ट, ओके। आई थिंक 7th नहीं किया हमने, 6 कर लिया, 7th नहीं किया है। सो लेट्स डू दिस। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता, क्या बोलता तुम, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है दैट साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, आई थिंक कर लिया हमने ये, आई थिंक वी हैव डन दिस, 7th किया है, ओके। लेट्स कम टू 8th। साइन ए प्लस कोसेकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेकेंट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो वी हैव, let us convert into simple fractions. We have cosecant a can be written as 1 by sin a, so sin a plus 1 by sin a का whole square plus cos a plus 1 by cos a का whole square। a plus b का whole square क्या होता है, a square plus b square plus 2ab, sin a कैंसिल, इसका भी करेंगे cos square a plus 1 by cos square a plus 2ab, cos a कैंसिल, I'm using this formula, सही है। Now having done that, let us see what do we get। यहाँ पर देखो ये है साइन स्क्वायर ए, ये है कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये रहा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस 4 क्यों, ये 2 भी है यहाँ पे और ये 2 प्लस 2 इज बच्चों 4, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, वो तो 1 होता है। सो 4 प्लस 1 अब तक हमारी कहानी में आ गया 5, है ना। और ये क्या है, साइन स्क्वायर ए का बन जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस सेकेंट स्क्वायर ए, ओके, बहुत बढ़िया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, सही है। अब हम क्या जानते हैं, वी नो 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेकेंट स्क्वायर ए होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेकेंट स्क्वायर ए होता है।
लेट मी सब्स्टिट्यूट दिस इक्वेशन हियर। 2 4 + 1 5 ऑलरेडी है हमारे पास, और कोसेकेंट स्क्वायर ए की जगह लिख दिया हमने 1 + cot स्क्वायर ए प्लस 1 + tan स्क्वायर ए। तो ये वाला 1 और 5 के साथ ऐड होंगे, 5 + 1 6 + 1 7, 7 + tan square a plus cot square a, which is our right hand side. So dear students, we have proved this whole thing, इसको simplify किया LHS को, is equal to 7 + tan square a plus cot square a। फिर से देख लो एक बार, कोसेकेंट को हमने 1/sin लिखा, सेकेंड को 1/cos, a + b का स्क्वायर लगाया, फिर हमने ये sin square a cos square a को जोड़ा तो ये 1 आया, ये वाला 2 और ये वाला 2 जोड़ के 4 आया, तो ये 1 + 4 5, और ये आ गया हमारे पास 1/sin square a plus 1/cos square a। और हम जानते हैं, फिर हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया वाला। ये फॉर्मूलाज आपको बच्चों को सबको याद होने चाहिए, जितने भी फॉर्मूलाज करते हैं ना, कहीं एक कॉपी में लिख लो, एक पेज पे लिख लो, जितने फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, बार बार फॉर्मूलाज को लर्न करते रहो तो आपको ये वाले फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। एंड दैट्स हाउ वी हैव बीन एबल टू handle this and do it. Okay, now the 9th part of this question number 5, exercise 8.4, the most important exercise of entire math of class 10th, क्योंकि इसमें से 100% 7 मार्क्स के क्वेश्चन तो 100% आने हैं एक एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन में से, पेपर लीक है बनने से पहले ही। सो क्वेश्चन नंबर 9, cosecant a minus sin a, please always don't go to the next question till the time you are able to write the previous question in your copies. I am sending you a YouTube link today because I want you to study at your own pace. You know, some students are quick learners, some are slow learners. YouTube helps all kinds of learners. Okay, and we are all science people, we should always experiment and see which is a better model for us. So the better should be for you. So please do let me know if you like this method so that I may continue like this, or we should go back to our own ways. Own ways have problems. 5-10 minutes are wasted in inviting students. Students are joining. Then some breakages are there, some linkage breakages are there. People are coming in between. सो देर उनका कुछ मिस हो जाता है, किसी कुछ रह जाता है, सब बच्चे आ नहीं पाते हैं फॉर मैनी रीजंस, बट यूट्यूब वुड इज़ लाइक अ अमर ट्यूब, इट विल ऑलवेज बी देयर। आप कभी भी पढ़ना तो साथ साथ चाहिए, लेकिन आप बाद में भी पढ़ेंगे, यू विल स्टिल बी एबल टू गेट होल्ड ऑफ दिस। नाउ द क्वेश्चन इज कोसेकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सेकेंट ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/tan a प्लस कॉट ए। अब ये वो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हमको सिंप्लीफाई करना है साथ साथ। ओके, तो कोसेकेंट ए को स्टूडेंट्स वी कैन राइट एज 1/sin a, राइट, एंड साइन ए तो ठीक है। सेकेंट ए को लिख सकते हैं 1/cos a, cos a तो ठीक है। tan a को बच्चों लिख सकते हैं हम sin a/cos a, और cot a को लिख सकते हैं cos a/sin a, राइट। एलसीएम ले लेते हैं, इस दो टर्म्स का एलसीएम sin a आएगा, और ये आएगा 1 - sin a इंटू sin a, sin स्क्वायर a। उसी तरह से इसका भी एलसीएम लेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में cos a, और ये बन जाएगा 1 - cos स्क्वायर a। और इधर एलसीएम लेंगे तो वो sin a इंटू cos a आएगा, sin a से मल्टीप्लाई, cos a से, तो आएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। बहुत बढ़िया। अब जरा देखो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या होता है, वो तो 1 होता है, हमने यहाँ लिख दिया 1/sin a cos a। और यहाँ देखो व्हाट इज 1 - sin स्क्वायर a, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 होता है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 होता है। देयरफॉर अगर मैं sin स्क्वायर a को इधर ले जाऊँ तो क्या आएगा, 1 - sin स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a। So 1 - sin square a, students, is equal to cos square a, and 1 - cos square a is equal to sin square a। आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए दूसरी आइडेंटिटीज यूज की जाती हैं। ओके, सो दिस बिकम्स, न्यूमरेटर बिकम्स cos square a and this becomes sin square a।
एक साइन ए एक साइन ए के साथ कैंसिल, एक कॉस ए एक कॉस ए के साथ कैंसिल, तो बचा क्या, साइन ए इंटू कॉस ए। और इधर देखते हैं वो क्या बचा, 1/1 बाय साइन ए इंटू कॉस ए। इसको ऊपर ले जाएंगे, 1 बाय समथिंग, वो साइन ए इंटू कॉस ए, इधर भी साइन ए इंटू कॉस ए, उधर भी साइन ए इंटू कॉस ए, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। राइट, अब एडवांटेज ऑफ दिस इज यू कैन ऑलवेज रिवाइंड। आपको कोई बात समझ नहीं आई, आप पीछे जाकर मुझको फिर से मैं आपके लिए गाने गाऊंगा, आई विल एक्सप्लेन अगेन। सो गिव अ पॉज, complete your question, only then you should go to your next issue, right? So let me, question number 10, 10th part of question number 5, exercise 8.4, 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a is equal to 1 minus tan a upon 1 minus cot a का स्क्वायर इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए। तो 3 वाला आ गया ये। तो आओ देखते हैं। पहली बात हम जानते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर ए होता है। अभी भी क्या था ना फॉर्मूला, रिमेंबर? इससे पिछले क्वेश्चन में क्या हमने, हियर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर ए, राइट? आई एम गोइंग टू यूज दिस here. 1 plus tan square a is secant square a and 1 plus cot square a is cosecant square a, CC formula है ना, 1 plus cot square a is equal to cosecant square a, and tan को simplify करते हैं, tan is sin a by cos a and cot a is cos a by sin a। तो अब देखो secant square a क्या होता है, 1 by cos square a and cosecant square a क्या होता है, 1 by sin square a। ये ठक ठक ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ये ऊपर चल जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर ए नीचे कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, वो तो टैन स्क्वायर ए होता है। इसको देखते हैं, अभी तक हमारा ये ऐसा हुआ है, एलसीएम लेते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए एंड साइन ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए, सही है। ये कॉस ए माइनस साइन ए है, नीचे साइन ए माइनस कॉस ए है, क्यों ना हम एक इसको भी रैशनलाइज कर दें, मतलब ऊपर ले जाएं, स्क्वायर बाहर रखते हैं ब्रैकेट में, साइन ए ऊपर चल जाएगा, कॉस ए नीचे आएगा, और एक माइनस कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से मैंने एक माइनस कॉमन लिया ताकि ये भी कॉस ए माइनस साइन ए बन जाए। फ़ायदा क्या होगा, ये कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए कैंसिल हो जाएगा ना। यहाँ से मैंने इस पूरे में से एक माइनस को बाहर निकाला है, ये वाला माइनस वो वहीं आया है, तभी ये साइन ए माइनस कॉस ए बन गया है, कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है बच्चों, अब देखो ये कट गया, डिस्क्याओं साइन ए बाय माइनस कॉस ए, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव ही होता है ना, माइनस टैन ए का स्क्वायर वो भी टैन स्क्वायर होता है। तो हमने प्रूव कर दिया दैट ये ब्रैकेट सॉल्व होकर टैन स्क्वायर ए बनता है और ये वाला पूरा ब्रैकेट भी सॉल्व होकर टैन स्क्वायर ए बनता है। सो वी हैव प्रूव्ड दैट LHS, दो LHS इज इक्वल टू RHS, राइट? मेक सेंस? देखो एक बार स्लोली रन आउट कर रहा हूँ मैं इसको, पूरा स्क्रीन देखना हो तो, राइट? सो दैट इज द स्क्रीनशॉट स्लाइड। So with this students we come to the end of exercise 8.4, right? We come to the end of exercise 8.4. Now the only thing left with us is the application of trigonometry. Please complete this work today. In the next class tomorrow we will take the last exercise. Actually in fact जो हमारी नई बुक है उसके अंदर it is a new chapter, right? A new chapter, trigonometry and its applications. So we will take a new chapter. नई बुक के हिसाब से एक चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है, right? So let us break here then, and we'll see you up in the